Hello, dear students. In our previous class, we are discussing about strain gauge. Uh, in strain gauge, we have already discussed the condition of balance mode. That is this condition. We have discussed this condition. Now we are going to the unbalanced mode of Wheatstone bridge. So there are three conditions of unbalancing of Wheatstone bridge. First one is the quarter bridge, second one is the half bridge, and third one is the full bridge. Okay, then what will be the output voltage in case of quarter bridge, half bridge, and full bridge? So first we will discuss quarter bridge. So in the case of quarter bridge, what we do, we add strain gauge to the one arm of Wheatstone bridge, and the other resistance will be the same as of Wheatstone bridge. Okay, and the strain gauge is fitted to the cantilever beam like this. There is a cantilever beam on which the strain gauge, which is having the resistance of R1, is fixed, and a force is applied over it, due to which what will happen? Due to which what will happen? Resistance will change and Due to the application of the force, this value of resistance R1 get changed, because when force is applied over it, then the beam get deflected, and this strain gauge, which is over here, it is in the tension or it is in the compression by the application of the force. so tension. It is in tension, so some strain occurs in this strain gauge, due to which the change in resistance occurs. So what will happen? Strain gauge R1 is under tension, and R2, R3, R4 are the fixed values of a Wheatstone bridge. Value of current flowing in limb A, B, and BC. It means we are talking about this A, B, and BC, है ना? अगर इस सर्किट डायग्राम को देखें तो इससे क्या होगा? आप देखिए तो I1 क्या हो जाएगा? I1 is flowing in this part of the Wheatstone bridge. So I1 is equals to Vs, that is the supply voltage, divided by R1 plus R2, है ना? ये होगा क्योंकि R1 plus R2 क्योंकि आपके सीरीज में, तो आपका I1 क्या हो जाएगा? I1 is equals to Vs divided by R1 plus R2, है ना? अब इस के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? AB, VAB कितना होगा? That is equal to I1 R1 होगा या नहीं इस वाली उसमें आर्म में?
तो Yes, आप sir. ऑलरेडी I1 की वैल्यू निकाल चुके हो. पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट R1 Vs divided by R1 plus R2. This is the value of voltage drop in limb AB. Okay, now we will move further. Now what will happen in a similar way, I will calculate the value of I2, that is Vs divided by R3 plus R4. ठीक है, पहले हमने जो निकाला था बेटा वो इस लिम के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला था, अब जो निकालेंगे हम वो इस लिम के कॉरस्पॉन्डिंग. तो पहले ये ए बी था, अब ये यहाँ डी है, ये ए डी. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वी एस बाय आर थ्री प्लस आर फोर. ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए डी क्या हो जाएगा आर थ्री डिवाइडेड बाय आर थ्री प्लस आर फोर इंटू वी एस. ठीक है, होगा या नहीं होगा? अब देखिए बेटा, अब अगर इनिशियली मैं देखूं व्हीट स्टोन ब्रिज की आर्म को कैसे रखा गया है कि ऑल द आर्म्स विदाउट एनी फोर्स इज हैविंग सेम रेजिस्टेंस. आपकी चारों आर्म का सेम रेजिस्टेंस है जब तक उसमें फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है. ठीक है, तो लेट द रेजिस्टेंस बी आर, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर. वो किसके बराबर मान लिया आपने? आर के बराबर, है ना. जब अगर आपने आर के बराबर मान लिया तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वोल्टेज ड्रॉप वाली इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा आपका VAB is equals to VAD is equals to VS by 2 आ जाएगा. ठीक है, और अगर आपको जो गैल्वेनोमीटर जो आपका ये व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरह का होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप. तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा आपका? दैट इज VAB माइनस VAD. ठीक है बेटा, ये VAD है यहाँ पे, VAD. तो आप दोनों को निकालोगे तो जीरो में आउटपुट मिलेगा. इसका मतलब है आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी, तो आपका आउटपुट वैल्यू जीरो रहेगी उस टाइम, है ना. जब तक कोई फोर्स आपकी अप्लाई नहीं हो रही है, in that case your value of the output will remain zero. Is that clear or not? Yes, sir. Now what will happen in the strained condition? ठीक है, अब स्ट्रेन लग गया, आपने फोर्स अप्लाई कर दी, उसके बाद क्या होगा? लेट द वैल्यू ऑफ R1 इज चेंज बाय dr. जो आपका R1 था, जो आपका कैंटिलीवर बीम पे लगा हुआ था, या आपने फोर्स अप्लाई कर दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसमें चेंज आया दैट इज dr. ठीक है, तो अब आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा? दैट विल बी R1 प्लस dr डिवाइडेड बाय R1 प्लस dr प्लस R2. R2 R3 R4 आपके वही रहेंगे जो पहले थे, सिर्फ स्ट्रेन किस में डेवलप हो रहा है? आपके स्ट्रेन गेज में. तो रेजिस्टेंस इसका चेंज हो रहा है स्ट्रेन गेज का. ठीक है, इनटू वीएस. अब इनिशियली तो आपके सारे रेजिस्टेंस सेम थे, तो R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 दैट इज इक्वल टू R. तो VAB कितना आ गया आपका? VAB विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू R प्लस dr डिवाइडेड बाय 2R प्लस dr इंटू VS. ठीक है, और VAD कितना हो जाएगा? VAD आपका जो अनस्टेन्ड कंडीशन थी वो उसी के बराबर रहेगा, इसके बराबर, क्योंकि आपका R3 भी वही है, R4 भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. तो आपका VAD कितना आ जाएगा बेटा? VAD आपका आ जाएगा VAD इज इक्वल्स टू VS बाय 2. अब फाइनली आपका चेंज इन आउटपुट कितना होगा? दैट इज V नॉट प्लस DV नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ VAB माइनस VAD. इन दोनों को माइनस कर दोगे. ठीक है, जब माइनस करोगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अब बेटा देखो, एक तरफ आपका 4R लिख रहा है, दूसरी तरफ आपका 2DR लिख रहा है ना. तो ये बताओ DR छोटी वैल्यू होगी या बड़ी वैल्यू होगी? छोटी है सर, बताइए. बहुत छोटी वैल्यू है, और उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया उसका जस्ट, है ना. मतलब पॉइंट्स में है, नेगलेक्ट उसको जस्ट डबल कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, है ना. तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे इन कॉरस्पॉन्डिंग टू 4R. 4R के कंपैरिजन में आपने 2DR को नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है, तो आपका फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली V नॉट प्लस DV नॉट इज इक्वल टू DR बाय 4R इंटू VS. अब आप ध्यान से देखो, यहां मैंने प्रूफ क्या किया था अनस्टेन्ड कंडीशन के लिए? V नॉट इक्वल टू 0. तो ये तो मेरा 0 ही रहेगा, क्योंकि ये तो हमेशा उतना ही रहेगा जितना अनस्टेन्ड कंडीशन में था. जो भी चेंज आ रहा है स्ट्रेनिंग की वजह से वो ये आ रहा है DV नॉट, है ना. तो V नॉट को 0 रख दिया, तो फिर फाइनली आपकी इक्वेशन क्या आएगी? ये DV नॉट इज इक्वल टू DR बाय 4R इंटू VS. अब आप ध्यान से देखो, DR बाय R को क्या किससे रिमूव कर सकते हो आप? बोलो, DR बाय R को किससे रिमूव कर सकते हो?
मैंने बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेन गेज फैक्टर का फॉर्मूला बताया था। स्ट्रेन गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? dr by r डिवाइडेड बाय dl by l इज इक्वल्स टू f, था या नहीं? तो आपने इस dr by r को किससे रिमूव कर दिया? f इंटू dl by l, तो ये आ गया आपका dv नॉट इज इक्वल्स टू 4 ओ vs by 4 into f into epsilon. epsilon जो है वो आपका स्ट्रेन है. It means in the quarter bridge dv naught is directly proportional to the strain developed and is also directly proportional to the fourth part of the supply voltage. ठीक है? Is that clear बेटा? Is that clear? अब ये तो हो गया क्वार्टर ब्रिज. अगर आपका स्ट्रेन गेज इस तरह से फिक्स हो, अगर आपका स्ट्रेन गेज इस तरह से फिक्स हो, पहले आपने क्या किया था? सिर्फ आपने एक काम में स्ट्रेन गेज लगाई थी. ठीक है, आपने उसे क्वार्टर ब्रिज बोला था क्योंकि आपने क्वार्टर पार्ट लिया था स्ट्रेन गेज के लिए. अब आप हाफ पार्ट ले रहे हो. ठीक है, यू आर टेकिंग हाफ पार्ट. आपने R1 भी आपने स्ट्रेन गेज लगाई है, R2 भी स्ट्रेन गेज लगाई है. फिक्स कैसे करी जाएगी? ये जो आपकी बीम दिखाई दे रही है, R1 जो है वो ऊपर होगी और R2 जो है वो नीचे होगी आपके. अब ये बताइए, जब बीम डिफ्लेक्ट होगी हमारी, ठीक है, फोर्स की वजह से, तो R1 किस में होगी? टेंशन में या कंप्रेशन में? कंप्रेशन में. R1, R1 टेंसाइल होगी और R2 कंप्रेशन. यस, R1 आपकी टेंशन में होगी और R2 कंप्रेशन में होगी. लेकिन चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? सर एक का बढ़ेगा एक का घटेगा. हाँ, लेकिन सेम क्वांटिटी से. हाँ. सेम क्वांटिटी से जितना टेंशन में इंक्रीज होगा उतना ही आपका कंप्रेशन में डिक्रीज होगा. ठीक है, सो R1 is in tension and R2 is in compression and R3 and R4 will be fixed. जो आपके पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, ये कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. अनस्ट्रेन्ड कंडीशन में दोबारा नहीं बताऊंगा. जो अभी मैंने आपको क्वार्टर पेज में बताई थी वही इसके लिए रहेगी. सर इसमें हम पॉइजन्स रेशियो नेग्लेक्ट करते हैं ना, 1 मानते हैं ना पॉइजन रेशियो को. किसमें बेटा? स्ट्रेन कंडीशन में इसकी पॉइजन्स रेशियो को 1 मानते हैं ना. नहीं, आपका स्ट्रेन कंडीशन जो आपने फॉर्मूला जनरेट किया था, फॉर्मूला तो बेटा आपने वहां स्ट्रेन गेज का फैक्टर का फॉर्मूला निकाल दिया. ठीक है, आपने ये प्रूव किया कि मोस्ट ऑफ द मेटल इज हैविंग द स्ट्रेन गेज फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू 1.6, जो मैंने सर अभी वो प्रूव इसलिए करके पूछा दिखाया था था. सर, बिकॉज सर चेंज इन एरिया बाय चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज भी कर रही है आर की, तो उससे रेजिस्टेंस. आप जो ज्यादातर वो दोगे वो लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ही दोगे. ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को ज्यादा हम माने नहीं रखेंगे. हाँ, वो ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि आप बेटा जब स्ट्रेन करोगे, किसी भी चीज को खींचते हो, तो उसकी एरिया जो है वो बहुत, मतलब एरिया इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेंथ ज्यादा इफेक्ट करती है. यस सर. है ना? तो आपका हाफ ब्रिज के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हेन लोड इज अप्लाइड, R1 is increasing by dr and R2 will decrease by the same amount dr. ठीक है, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, यानी R1 क्या हो जाएगा आपका, मतलब फाइनली R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 प्लस dr1, जो मतलब स्ट्रेन के बाद हो जाएगी, और R2 की वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस dr. ठीक है, अब जब आप इनिशियली लेके चलते हो तो सारी वैल्यू रेजिस्टेंस की सेम लेके चलते हो, तो फाइनली आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? R प्लस dr और R माइनस dr. ठीक है, तो अब देखो आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB I1 R1 होगा, that will be given as R plus dr divided by R plus dr plus R minus dr. ये देखो R1 और R2 की वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पे. ये R1 है, ये R1 है, ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है. ठीक है, तो आपका बेटा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? ये वाली. ठीक है, ये आपका VAB आ जाएगा, और ये बेटा आपका ये VAD है, ये वाला ना, ये VAD है ना. VAD क्या आ जाएगा? VAD इज इक्वल्स टू VS/2. वो सेम रहेगा क्योंकि आपका कोई चेंज नहीं है यार, कोई भी स्ट्रेन गेज नहीं लगाई है, वो वही है जो आपका सिंपल पहले आया था. ठीक है, तो अब आप देखो, आप चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे? DV नॉट प्लस V नॉट प्लस DV नॉट, है ना, इन दोनों को माइनस कर दोगे, VAB माइनस VAD, दोनों को माइनस करके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी ये आएगी VS/2 dr by r, और dr by r की जगह आप क्या रख सकते हो? F into एप्सिलॉन.
है ना, और वी नॉट आपका 0 है, वो स्टार्टिंग में आपने प्रूव कर रखा है, तो वो आपका डीवी नॉट क्या आ जाएगा, डीवी नॉट इज इक्वल टू वी एस बाई 2 एफ इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे प्रूव किया when you will use two strain gauge in the wheat stone bridge, then the output voltage is directly proportional to strain, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, and but it is also proportional to the half of supply voltage। यहाँ चेंज क्या आ गया, चेंज सिर्फ बेटा आपका इतना आया है कि आपका अब जो ये आया वो Vs/2 हो गया, ठीक है, यानी कि अगर आपने क्वार्टर का निकाल लिया है तो आपको हाफ का भी याद रख सकते हो, क्वार्टर का आपका Vs/4 आता है, क्वार्टर का आपका सॉरी इसका हाफ का आपका Vs/2 आता है। अब सेम कंडीशन आपको फुल के लिए निकालनी है, फुल मतलब आपके ये और ये स्ट्रेन गेज लगी हुई है, सारी स्ट्रेन गेज लगी हुई है, तो आप मुझे बता सकते हो कोई कि फाइनली आउटपुट चेंज कितना आएगा, फाइनल इक्वेशन जो आएगी आपकी फुल के लिए। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही, गौरव आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई बता सकता है मेरे को फुल के लिए कंडीशन क्या आएगी? बताइए। 0 ही रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ डीवी नॉट क्या आएगा फाइनल फुल स्ट्रेन गेज के लिए, मतलब Vs/2 into नहीं F epsilon। Vs into F into epsilon। हाँ बेटा आकाश बताइए। Vs into F into epsilon। यस इट इज Vs into F into epsilon। फुल के लिए आपकी ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि 4 स्ट्रेन गेज लग रही है, कैसे स्ट्रेन गेज आपने फिक्स किए वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इस तरह से बेटा आप क्या करोगे, जब फुल के लिए लोड लगाओगे तो आप क्या करोगे, R1 और R2 को तो टेंशन साइड में रखोगे और R3 R4 को कंप्रेशन साइड में, ठीक है, और फाइनली आपका आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो आएगा dV नॉट इज इक्वल्स टू Vs into F into एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस ये वाला डेरिवेशन आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आपको करना है फुल ब्रिज वाला, ठीक है, वैसे ही करना है जैसे हाफ ब्रिज और मैंने क्वार्टर ब्रिज बताया था, ठीक है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक में या तो चैप्टर का बोल सकता हूँ या आपके सिलेबस का बोल सकता हूँ, दैट इज टेम्परेचर कंपनसेशन, ठीक है। टेम्परेचर कंपनसेशन क्या होता है बेटा, आपकी जो स्ट्रेन गेज है वो बेसिकली उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होना चाहिए वो किसकी वजह से होना चाहिए, बताइए। फोर्स और टेम्परेचर। फोर्स और टेम्परेचर, जबकि हम क्या कर रहे हैं, बीम में लगा रहे हैं स्ट्रेन गेज, तो बीम पे क्या लग रहा होगा, टेम्परेचर लग रहा होगा क्या सर या फोर्स लग रहा होगा? बीम में तो फोर्स ही लग रहा है। फोर्स लग रहा होगा, तो हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि उस फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, लेकिन हम टेम्परेचर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। टेम्परेचर हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा ही करेगा, जो स्ट्रेन गेज वायर है उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इफेक्टिव होता है, कोई स्ट्रेन गेज इफेक्ट होता है उससे, तो उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि लेंथ उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा उस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर आपका जो फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होना चाहिए था खाली, वो टेम्परेचर भी ऐड हो जाएगा उसमें, होगा या नहीं होगा? टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ फोर्स वाला काउंट करना है हमें, तो फिर उस टेम्परेचर वाले इफेक्ट को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है, दैट वी लर्न इन दिस टेम्परेचर कंपनसेशन, ठीक है। टेम्परेचर कंपनसेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटो जो वर्क है वो ये है कि हमारा फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो हम निकालें, टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेन को अपने पे, मतलब स्ट्रेन गेज पे इफेक्ट न डालने दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है टेम्परेचर कंपनसेशन का, एक मेथड होता है, वो मेथड अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपका जो स्ट्रेन डेवलप होते हैं स्ट्रेन गेज में, ठीक है, वो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बेटा पहला होता है आपका वॉल्यूम चेंज की वजह से, मतलब एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, आपने उसमें
ये टेंशन फोर्स लगा रखा है तो उसकी लेंथ चेंज होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका कुछ एरिया भी चेंज होगा। तो जो पहला होता है आपका रेजिस्टेंस चेंज, वो होता है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग। दैट विल बी dr1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू f इनटू r। पहला तो क्लियर है ना, पहला जो मैंने आपको बताया था वही है ये, dr by r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन टू f, है ना। पहला वाला जो आपको चाहिए होता है, जो ओरिजिनली आपको चाहिए, पहला वाला। दूसरा स्ट्रेन डेवलप और दूसरा रेजिस्टेंस डेवलप होता है आपका इफ अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गेज फिलामेंट। जो गेज फिलामेंट का वायर है उसका कोई टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, और उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो वर्क कर रहा है, लेकिन उसमें कोई टेम्परेचर चेंज हो गया, लेट इट बी dt अमाउंट, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया dt अमाउंट से, तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेजिस्टेंस चेंज कितना हुआ, दैट विल बी दिस वन, dr2 इक्वल्स टू r इंटू अल्फा इंटू dt। ठीक है, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, जो टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप sir. होता है। ठीक है, तो ये वहां से आया है। तो एक ये इफेक्ट होता है। थर्ड इफेक्ट होता है आपका बेटा, जैसे आपकी ये बीम है ना, बीम का मटेरियल अलग होता है और आपकी जो स्ट्रेन गेज लगी हुई है उसका मटेरियल अलग होता है, स्टिक की हुई है ना, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग होगा, एक्सपेंशन का इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो इन दोनों के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे, है ना, उसको भी काउंट किया जाता है। दैट विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला, dr3 is equals to f into r गामा माइनस बीटा dt। गामा क्या है आपका, गामा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गेज है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सरफेस है ऑन विच स्ट्रेन गेज इज अटैच्ड, एंड बीटा इज द स्ट्रेन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गेज। ठीक है, तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेन वो सॉरी रेजिस्टेंस चेंज होता है स्ट्रेन गेज का। लेकिन आपका काम होना चाहिए बस ये, आपका जो चेंज होना चाहिए वो ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये आपका टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, नाउ यू हैव टू कंपनसेट दिस रेजिस्टेंस चेंज, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो क्या हुआ हमारा। टोटल रेजिस्टेंस चेंज अगर आप देखो तो फिर ये हुआ ना, तीनों को प्लस कर दिया, dr इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 होगा ये। ठीक है, अब आप पढ़ क्या रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो दैट हाउ योर स्ट्रेन गेज इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज, है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है वो निकालना है, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय r dt। तो अब ये देखो dr बाय r dt आ गया, इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, dr बाय r dt। ठीक है, तो अब पूरी इक्वेशन को आपने r dt से डिवाइड किया है, तो आप देखो फाइनल इक्वेशन, इसमें से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा पहले वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा। दूसरे वाले पार्ट में आपका r dt से r dt कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फा बचेगा। थर्ड वाले पार्ट में r dt से r dt कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बचेगा f गामा माइनस बीटा। तो फाइनली बेटा ये जो है आपके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये टेम्परेचर की वजह से आता है, ये जो पार्ट है ये टेम्परेचर की वजह से आता है। तो इसको एक नेम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गामा स्टार और अल्फा स्टार, एंड दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट which depends upon the property of strain gauge as well as the property of test surface। एक तो strain gauge की खुद जिस मटेरियल का बना हुआ है, प्लस आपका जो सरफेस जिसके साथ लगाया जाना है, स्ट्रेन गेज जिस सरफेस पे लगाया जाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका टेम्परेचर की वजह से, इसको आप कैसे रिमूव करोगे, दैट मेथड इज कॉल्ड एज यूजिंग डमी गेज, टेम्परेचर कंपनसेशन बाय यूजिंग डमी गेज। डमी किसे कहते हैं बेटा? ओरिजिनल की कॉपी, हाँ ओरिजिनल की अगर कॉपी रहती है उसमें, यस, ओरिजिनल की कॉपी, यानी कि हमने जो स्ट्रेन गेज ली है उसकी एक कॉपी ले लें, बिल्कुल मतलब एक मिरर इमेज ले लें। ठीक है, अब वो कैसे टेम्परेचर कंपनसेशन को रिमूव करेगी वो मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम से दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या किया बेटा, देखो आपने ये वही वाला व्हीट स्टोन भेजा जो मैं पहले आपको दिखाता चला रहा हूँ। अब क्या किया है आपने, ये आपका R1 है, इस पे स्ट्रेन गेज लगी हुई है, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है इस तरह से। ठीक है, उस सरफेस पे आपने स्ट्रेन गेज फिक्स कर दिया और इस सरफेस पे आपकी टेंशन फोर्स वर्क कर रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है R1 वाला। अब R2 को क्या किया है आपने, R2 पे आपने
सेम टेस्ट सरफेस लिया है, मतलब एक छोटा सा टेस्ट सरफेस लिया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और इसमें आपने एक डमी गेज लगा दी है। इसमें डमी गेज का जो क्वालिटी है वो वही है जो आपकी स्ट्रेन गेज की है। आपका जो मटेरियल यूज किया गया है वो सेम यूज किया गया है, और आपने इनको प्लेस कैसे किया है, आपने इनको प्लेस ऐसे किया है कि दे आर क्लोज टू ईच अदर। ये जो आपकी मेन गेज है और ये डमी गेज है, ये एक दूसरे के क्लोज रहे। अब ये कोई मुझे ये बता सकता है कि ये क्लोज क्यों रखी गई हैं? मैं ऐसा रख सकता हूँ ना, एक को दूसरे कमरे में, एक को सर दूसरे ताकि कमरे में। टेम्परेचर जो हो का चेंज उनमें सेम ही हो। यस, इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट आए वो दोनों में सेम आए। अब ये बताओ मेरी फोर्स किस पे लग रही है? जो सर मेजरिंग हमारी गेज, R1 R2 पे लग रही है फोर्स, नहीं फोर्स फोर्स जो ओरिजिनल है उस पे लग रही है, डमी पे नहीं लग रही। ओरिजिनल पे, लेकिन डमी पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई है। डमी पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई है। अब मुझे यहाँ बताओ टेम्परेचर कंपनसेशन की कैसे दूर हो सकता है? यहाँ से टेम्परेचर सर का जो इफेक्ट भी कैसे डमी हटा? पे आएगा वो हम माइनस कर देंगे तो टेम्परेचर वाला सब चला जाएगा स्ट्रेन। यस बेटा, देखो आपका क्या था, मैंने आपको जो अभी बताया था, ये आपकी वो कैंटिलीवर बीम है, ये आपकी R1 लगी हुई है, ठीक है, और ये आपकी R2 लगी हुई है, और यहाँ फोर्स लग रहा है ना। अब देखो बेटा, अगर ये में R1 जो है, R1 में जो चेंज हो रहा था वो DR हो रहा था, नहीं हो रहा था? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो चेंज हो रहा था, मतलब नीचे, वो -DR हो रहा था, है ना, माइनस में जा रहा था, -DR। लेकिन अब देखो एक ही मतलब रीजन में रखी गई है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का जो इस R1 पे जो इफेक्ट आएगा वही इस R2 पे आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस जो R1 पे आएगा वही R2 पे आएगा। तो अब देखो आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। जो स्ट्रेन डेवलप होगा एक्टिव गेज की वजह से, यानी कि एक्टिव गेज ये वाली है, वो होगा स्ट्रेन डेवलप बाय फोर्स प्लस स्ट्रेन डेवलप बाय टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन डमी गेज में क्या होगा? स्ट्रेन डेवलप बाय ओनली टेम्परेचर। तो जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे ना, जब फाइनल कैलकुलेशन करोगे, दिस डी एप्सिलॉन टी इज रिमूव्ड बाय दिस एप्सिलॉन टी, तो फाइनली आपका बचेगा क्या? Strain developed by force only. This is how we remove the effect of temperature in the strain gauge, and this is called as temperature compensation. Is that clear, beta? Is that clear? यस सर। ठीक है, तो now your syllabus is completed. ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी सारी पीपीटीज भेज चुका हूं, मैंने इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज दी है स्ट्रेन गेज वाले की, ठीक है। और आपका एक जो वो था वर्नियर हाइट गेज का जो प्रैक्टिकल था, है ना, वो ऑलरेडी मैंने कल यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, मैंने उसकी लिंक भी शेयर कर दी थी, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो आप वहां से देख सकते हो, पूरा प्रैक्टिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इवन मैंने साइन बार वाला भी प्रैक्टिकल पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है, क्योंकि अब मैं कॉलेज आ चुका हूँ तो मैंने वहाँ लैब में जाके और वीडियो बना दिया था वर्नियर हाइट, उसका वर्नियर हाइट गेज का भी, और आपका बाकी तो मैंने घर पे ही बना लिए थे, लेकिन मेरा ये रह गया था, क्या कहते हैं, साइन बार और स्लिप गेज वाला, तो वो भी मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है, तो आप उस लिंक पे जाके आप वो देख सकते हो। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी इसकी, इस चैप्टर की मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है, ठीक है। सो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सर मैंने आपसे सर एक बार पूछा था कि ये रोबोट हैंड्स जो होते हैं, हाँ उनमें अगर हमें कैलकुलेट करना हो स्ट्रेन कितना लग रहा है हर एक पॉइंट पे, हाँ, तो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा मैंने अभी सर्च नहीं किया है, क्योंकि मेरे को अभी और भी काम है, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं याद है मुझे, ठीक है, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं सर्च करके मैं आपको बता दूंगा। ओके एंड सर एक चीज और जाननी है सर, मैं नेट पे खूब ढूंढा पर मुझे मिल नहीं रहा है। तो जैसे ह्यूमन हैंड रहता है तो उसमें हर जगह जो टच करें तो सेंसिटिविटी का पता चलता है क्योंकि स्किन की वजह से, हाँ, पर लेकिन ऐसा क्या कोई बायोनिक आर्म बना है या फिर जिसका टच सेंसिंग उसका भी हर जगह मालूम पड़ जाता है हो, या मतलब कोई इस तरीके का सेंसर है जो रीड कर सकता है नहीं बेटा, फोर्स को सेंसर भी? का मुझे सेंसर पता नहीं है, लेकिन ह्यूमनॉइड तो बन चुका है ना। हाँ ह्यूमनॉइड बना है सर, हैंड भी बन गया है ताकि वो बायोनिक आर्म की लोग हाँ उसे महसूस भी कर सकते हैं हाँ, जो बहुत लेकिन छोटे हैं, जो आप वो कह रहे हो वो मुझे नहीं पता कि उस सेंसर के बारे में, ठीक है, जैसे वो स्किन किसी, टाइप। हाँ नहीं, वो सेंसर के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है।
कि सेंसर बना है या नहीं बना, लेकिन मुझे ये पता है ह्यूमनॉइड बन चुका है, जो इसको पूरा फील होता है, सब कुछ होता है उसे। ये मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ाई शुरू नहीं करी होगी, है ना? कितने लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है? ये देखो, अरे बता दो, क्या डर रही है बात है? या बोल दो सर 25 या 26 को एग्जाम है, उसकी एक रात पहले पढ़ेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ? क्यों बेटा? अरे बेटा सर भी जानते हैं अच्छी तरह, बताओ तो सही। यस सर। हाँ, आप ठीक है ना? चलो, तो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी बेटा समझ में आया है ना? यस सर। हाँ गौरव बोलो। सर आपने सरफेस टेक्सचर के बाद कुछ एक दो लेक्चर लिए थे सर, वो वाली पीपीटी नहीं है सर, उसका नाम तो मुझे अभी नहीं ध्यान। वो फोर्स मेजरमेंट था शायद सर, नहीं फोर्थ वाली तो सर अभी हम कर ही रहे हैं ना। नहीं, सरफेस टेक्सचर के बाद तो मैंने कुछ मतलब सरफेस टेक्सचर आपका इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट कराया था वो सरफेस टेक्सचर ही कंप्लीट कराया था। ओके सर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो, आप लोग जब पढ़े हैं और आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है? इसमें पीडीएफ में से क्या कुछ आएगा? बेटा पेपर बता दूं? नहीं, पेपर नहीं चाहिए सर। तो फिर? नहीं सर, किस टाइप से आएगा, मतलब कुछ तो अब आप। नहीं, आपको पता है ना कि आपका एक वन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, है ना? आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता, और वो भी ऑनलाइन आता है। नहीं सर, इसी के लिए पूछ रहा था, ये जो अभी कराया है सर। आपका मटेरियल की कंडीशन क्या होती है, आपकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्ट्रेन गेज फैक्टर क्या होता है, स्ट्रेन गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ना? आउटपुट कंडीशंस क्या होती हैं, क्वार्टर ब्रिज क्या होता है, हाफ ब्रिज क्या होता है, टेम्परेचर कंपनसेशन क्या होता है, किस टेम्परेचर कंपनसेशन कैसे हटाया जा सकता है। सर दोबारा सारी पीडीएफ अपलोड कर दीजिए सर। सर मेरे से डिलीट हो गई थी, कुछ फोन फॉर्मेट हो गया था। चलिए मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी? आपके एग्जाम कब से शुरू हुए बेटा? 23rd। 23rd। और मेजरमेंट का कब है? 26 या 27 को है ना? यस सर। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कई बार टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं। भाई हमने एक मशीनरी चलिए बेटा, कोई क्वेरी नहीं है तो अभी 2 मिनट और रुक जाइए, ठीक है? अभी 9:35 हो जाए तो फिर आप क्लास छोड़ दीजिएगा। अभी क्या हुआ? रुक रहे हैं सर, अब मैं लेट आया था एक बार। उस इम्प्रूवमेंट की वजह से हो सकता है कि ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाए और मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी हमारी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमने एक बार कंसीडर किया वही रहे, या हमने माना कि यही हो सकता है कि अब जो मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है या रनिंग कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट जो आपकी डिक्रीज हो गई। और तीसरा क्या है, ऑपरेटिंग रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू रिप्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग और अल्टरनेटिवली द हैजार्ड रेट ऑफ द इक्विपमेंट और कंपोनेंट मस्ट बी इंक्रीज। और उसमें क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है इक्विपमेंट की, वो रिप्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग और अल्टरनेटिवली हो सकता है इंक्रीज कर रहा हो या हो सकता है कम हो रहा हो। लेकिन जो उसके बाद अगर वो फेलियर कंडीशन या हैजार्ड कंडीशन उसका है इक्विपमेंट का, वो मे बी इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आपकी कंडीशन है वो सेम है। कंडीशन जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं तो
पिछले पोर्शन हाँ आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे। टॉपिक कोई है सर मेजरमेंट मेट्रोलॉजी का। ओके ओके, आपके पिछले सिलेबस में से भी क्वेश्चन आएंगे। 20% कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, मतलब 50-50 या 10-90? नहीं बेटा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो आपका पुराना वो था, वो तो ये कॉन्सेप्ट था कि 15 नंबर का आपका इसमें से आता था पुराने वाले में से, और 35 नंबर का आपका नए वाले में से आता था। लेकिन आप ऑनलाइन क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं है। ये पढ़ना पड़ेगा क्या सर? हाँ पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्या? मत पढ़ो। नहीं सर। चलिए बेटा ठीक है, फिर मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, है ना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर।